2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year,
I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states,
will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition,
the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. Industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice. Saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern जो है औद्योगिक क्षेत्र के विकास को करेगा, उसको कार्यान्वित करेगा और ये एक बहुत अच्छा मॉडल होगा हमारे जो है सांस्कृतिक
महत्व के स्थलों को विकसित करने के लिए, और ये हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सुगम होगा। और इसके साथ जो है विकास भी और विरासत भी, ये जो है स्लोगन दिया गया है। और इसके साथ हम जो है हमारे रास्तों के कनेक्टिविटी की जो परियोजना है उसका समर्थन करेंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर बादलवे एक्सप्रेसवे, 3 बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा, और उसके बाद जो अतिरिक्त 2 लेन का जो ब्रिज होगा गंगा और बक्सर में, और 26,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। और ये जो परियोजनाएं हैं जिसमें 2,400 मेगावाट की पावर संयंत्र है, उसमें लागत आएगी 21,000 करोड़ का। और नया जो विमानपत्तन है, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं विजार में, उनका निर्माण किया जाएगा। और अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा जिससे हमारी जो निवेश है, पूंजी निवेश है जो बिहार सरकार ने किया है, उनके बाह्य सहायता के लिए, बहुराष्ट्रीय विकास के लिए, उसका समर्थन हम जरूर करेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश पुनर्संगठन के बारे में हमारे सरकार ने ठोस प्रयास किया है, जिससे कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका पूरा समर्थन हम कर सके। और हम मान्यता दे रहे हैं जो इसके लिए इसकी पूंजी के लिए चिन्हित किया गया है, और साथ में जो लागत की जरूरत है उसमें हम विशेष जो है सहायता समर्थन देंगे। अलग अलग मल्टी डायमेंशनल एजेंसी के तहत, बहुआयामी एजेंसी के तहत, और इसमें अतिरिक्त राशि दी जाएगी भविष्य के लिए। हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से वचनबद्ध है, और हम वित्त पोषित करेंगे जो और इसके साथ जो है हमें ये देखना होगा कि आंध्र प्रदेश और के जो किसान हैं उनका हम समर्थन करेंगे, जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा और मजबूत हो सके। और इसके साथ जो है इस अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश पुनर्संगठन जो अधिनियम है, इसमें धनराशि दी जाएगी आवश्यक बुनियादी ढांचा के लिए, रेलवे के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए। और वो विशाखापट्टनम, चेन्नई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। और इसके साथ अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा इस वर्ष, जिसमें जो है पूंजीगत निवेश किया जाएगा हमारे आर्थिक विकास के लिए। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, रायलसीमा के लिए का प्रकाशम किया, और जो हमारी उत्तरी ये इस क्षेत्र के लिए भी आवंटन किया जाएगा। पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो इसमें अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत हमारी शहरी क्षेत्रों के लिए जो हमारे देश में है, इनकी घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किया जा रहा है। और महिला नेतृत्व विकास की अगर हम बात करें, महिलाओं के विकास के लिए बजट में जो आवंटित की गई है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो उन योजनाओं के लिए जो महिलाओं को लाभान्वित करेंगी। और साथ में ये जो है हमारी सरकार ने ये कहा है, वचनबद्ध है कि जो महिलाओं का जो भूमिका है वो विकास में बहुत ज्यादा होगा।
होगा। प्रधानमंत्री उन्नत कार्यक्रम में हमारे जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए जनजातीय उन्नत कार्यक्रम तैयार होगा, जिसमें हम सैचुरेशन कवरेज करेंगे जनजातीय लोगों के लिए, हमारे महत्वाकांक्षी गांव के लिए, इन स्थानों के लिए। और इसमें जो है 63,000 जगहों को इसमें कवर किया जाएगा, लिया जाएगा। बैंक की शाखा जो है पूर्वोत्तर में खोला जाएगा। 100 ब्रांच पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएंगी वह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, और उनको बैंकिंग की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इस वर्ष मैंने एक प्रावधान किया है 2.66 लाख करोड़ का हमारे ग्रामीण विकास के लिए, जिसमें आता है हमारे ग्रामीण अवसंरचना, हमारे जो पतन है, हमारे विनिर्माण का क्षेत्र है, और हमारे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इस बजट को ने विशेष ध्यान दिया है। एमएसएमई के और विनिर्माण के क्षेत्र में, विशेषकर जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, और इसके साथ हमने एक पैकेज बनाया है जिसमें हमने जो है विनियामक परिवर्तन दिया है और तकनीकी समर्थन किया है, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके विश्व स्तर पर। और ये चीजें मैं घोषणा कर रही हूँ। और इसके साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए, विनिर्माण क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, और उनको एमएसएमई को ऋण देने की बात जहां तक है, इसमें कोलैटरल नहीं होगा या थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है, क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया जाएगा। और ये जो श्रृंखला है वो जो है इस तरह के एमएसएमईज को समर्थन देगा। और इसके साथ सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी प्लान होगा प्रत्येक आवेदकों के लिए, और इसमें 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, और लोन की राशि शायद ज्यादा भी हो सकती है। और इसके लिए हमें एक एनुअल गारंटी शुल्क देना होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस स्कीम में नए आकलन मॉडल बनाया जा रहा है। सरकारी बैंक अपने इन हाउस क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे कि एमएसएमईज का आकलन हो सके। क्रेडिट की जगह जो है बाहरी अनुमान को लिया जाएगा, और वो भी नेतृत्व करेंगे और अपना विकास करेंगे। एक नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बनाएंगे जिसका आधार होगा डिजिटल फुटप्रिंट एमएसएमईज का हमारे अर्थव्यवस्था में, और आशा किया जाता है कि इसमें काफी सुधार होगा हमारी जो पारंपरिक जो अनुमान होता है उसकी तुलना में। और ये टर्नओवर क्राइटेरिया के परिसंपत्ति पर आधारित होगा। इसमें ऐसे एमएसएमईज होंगे जिसमें किसी तरह का औपचारिक लेखा परीक्षा नहीं होगी। और इसके साथ जो है जब स्ट्रेस या तनाव की अवधि होती है, मुझे बहुत खुशी है ये घोषणा करते हुए कि बैंक की जो ऋण है वो एमएसएमईज को दिया जाएगा जब वो तनाव के परिवेश में हो, और ये एक में अकाउंट होगा। और इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनके नियंत्रण के बाहर होती है, उस समय उन्हें ऋण की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो अपना व्यापार चला सके। और इसमें क्रेडिट क्षमता जो है वो गारंटी होगा एक सरकारी प्रोमोटेड फंड। मुद्रा लोन में हम आते हैं और ये सीमित था, वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 किया जाएगा उन उद्योगपतियों के लिए जिन्होंने जो है अपने लोन, जो पुराने लोन है उनका भुगतान कर दिया गया है। और इसके साथ अनिवार्य ऑनबोर्डिंग की सुविधा होगी एमएसएमई की सुविधा के लिए, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को जो है कैश तक लेकर जा सके। और इसके साथ जो है और 500 करोड़ से 250 करोड़ रुपए इसे किया जाएगा। और इस उपाय से 22 और सीपीएससी आ जाएंगे और
7,000 और कंपनी इस मंच पर जुड़ जाएंगे और जो हमारे मझोले उद्योग हैं वो भी इसकी परिधि में, सप्लाईज के परिधि में आ जाएंगे। सिद्धि अब ब्रांचेस जो एमएसएमई क्षेत्र में बनेगा, सिद्धि जो है नए शाखा बनाएंगी जिससे कि वो अपना क्षेत्र बढ़ा सके और सभी जो प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स हैं उनको सुविधा प्रदान कर सके और उनको सीधे रूप से ऋण दे सके। और इसके साथ 24 शाखाएं यहाँ पर खुलेंगी जो 168 में से 242 प्रमुख क्लस्टर्स में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई यूनिट की अगर हम बात करें, उनके गुणवत्ता के लिए वित्तीय समर्थन दिया जाएगा जिसमें 25 मल्टी प्रोडक्ट एविएशन एमएसएमई सेक्टर में खुला जाएगा और इसके साथ जो है 140 सेफ्टी टेस्टिंग लैब एनबीएलए के एक्रेडिटेशन के साथ ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स के निर्यात केंद्र खोले जाएंगे जिससे कि एमएससी और हमारे जो पारंपरिक कलाकार हैं वो अपने उत्पाद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज सकेंगे और ई कॉमर्स की स्थापना की जाएगी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत और इसमें जो है इनका बहुत बढ़िया लॉजिस्टिक्स होगा और जो निर्यात संबंधी जो सुविधाएं हैं वो एक ही जगह पर जो है मुहैया करा दिया जाएगा। और इंटर्नशिप जो है अपने शीर्ष कंपनियों में, इसमें प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत हमारी सरकार एक व्यापक योजना ले आएगी जिसके तहत इंटर्नशिप की जो है अवसर दिए जाएंगे। 500 कंपनी में 1 करोड़ जो युवा हैं उनको 5 साल में ये नौकरियां दी जाएंगी और इसके साथ जो है वो उनको जो है 12 महीने काम किया जाएगा, उनको उस वातावरण में रखा जाएगा और इसके साथ उनको रोजगार के बहुत सारे जो है अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इंटर्नशिप जो है इंटर्नशिप की अवधि में 5,000 रुपए उनको प्रति महीने दिए जाएंगे और 6,000 रुपए उनको दिए जाएंगे सहायता के रूप में और ये 30% उनका इंटर्नशिप लागत उनके धन निधि में से दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क में सरकार जो है इन्वेस्टमेंट रेडी को विकास करेंगी। इंडस्ट्रियल पार्क का विकास होगा और उसमें सारे बुनियादी सुविधाएं होंगी। 100 शहरों के आसपास और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से इसे किया जाएगा और 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ जो है इसको मंजूरी भी दी जाएगी। वेजी भाई पर नो प्लीज बैठिए। rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि किराए पर आवास की व्यवस्था औद्योगिक श्रमिकों के लिए की जाएगी और ये पीपीपी मोड में इसकी व्यवस्था की जाएगी और इसमें प्रमुख उद्योग भाग लेंगे। शिपिंग उद्योग में भी कई तरह के सुधार किए जाएंगे और भारतीय शिपिंग उद्योग में सुधार की गुंजाइश है वो की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये घरेलू उत्पादन के लिए होगी और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके पुनर्चक्रीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस कानून में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की व्यवस्था होगी और साथ ही साथ जो उत्पादक हैं उनकी विस्तारित जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। एक संरचना बनाई जाएगी, एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा
और साथ ही साथ ऑफशोर माइनिंग उत्खनन जो होगा खनिजों का उसकी व्यवस्था की जाएगी और उत्खनन के लिए खनन के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो पहले से किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। सेवा क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ जनसंख्या में काफी हद तक इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। नवाचार निजी क्षेत्र की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। ई कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, एमएसएमई सर्विस क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। एकीकृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी और इसकी स्थापना जो दिवालियापन वाले नियम हैं, दिवालिया होने के नियम हैं, उनमें इन्हें लागू किया जाएगा। इसका प्रसंस्करण सही तरीके से किया जाएगा। सभी अंशधारकों को इसमें शामिल किया जाएगा। एलएलपीज की स्वैच्छिक जानकारी को आगे बढ़ाया जाएगा और सीपेस की व्यवस्था और आगे बढ़ाई जाएगी। इसको विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में भी हम काम कर रहे हैं और 1000 से अधिक कंपनियों से प्रत्यक्ष वसूली की व्यवस्था की जाएगी और जितने भी ऋण लेने वाले लोग हैं उनसे ऋण की वसूली की जाएगी। इसके अलावा 20,000 ऐसे मामले हैं जो 10,000 करोड़ के हैं, इनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। आईवीसी में उपयुक्त बदलाव किए जाएंगे। ट्राइब्यूनल को बेहतर तरीके से काम करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इंसॉल्वेंसी के जो समाधान हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इनमें से कुछ की अधिसूचना जारी की जाएगी और ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होंगे। ऋण की वसूली के लिए ट्राइब्यूनल स्थापित किए जाएंगे। अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाएगी जिससे रिकवरी की गति बढ़ सके। शहरी क्षेत्रों में शहरों को एक विकास हब के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। सभी सरकारें सभी शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करेंगी और इसमें जो उप शहरी क्षेत्र होंगे उनको विकसित किया जाएगा। टाउन प्लानिंग स्कीम में बदलाव किए जाएंगे और रचनात्मक रूप से जो मौजूदा शहर हैं उनकी पुनर्संरचना का काम शुरू किया जाएगा और इसमें जो मार्केट आधारित नीतियां लागू की जाएंगी, नियमों को लागू किया जाएगा। ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान लागू किए जाएंगे। 14 बड़े शहरों में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है उसकी स्थापना की जाएगी। दरों पर ये कर्ज दिए जाएंगे और जो रेंटल हाउसेज यानी कि किराए पर घर देने की व्यवस्था है उसको पारदर्शी बनाया जाएगा। जलापूर्ति और स्वच्छता राज्य सरकारों के साथ मिलकर और बैंकों के साथ मिलकर हम इसकी व्यवस्था करेंगे। ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाएगा और 100 बड़े शहरों में इन सब परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएं महत्वपूर्ण तरीके से लागू होंगी और जो उपचारित जल होगा उसको सिंचाई के उपयोग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम स्वनिधि की सफलता के बाद, इस योजना की सफलता के बाद जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिवर्ष अगले 5 साल तक इसको विस्तारित किया गया है और 100 साप्ताहिक हाट बनाए जाएंगे चुने हुए शहरों में। स्टैंप ड्यूटी का जहां तक सवाल है, इस समय ज्यादा स्टैंप ड्यूटी लग रही है ताकि सभी के लिए हम व्यवस्था करेंगे
कि इस तरह की दरें जो है व्यवस्थित हो सके और महिलाओं द्वारा हासिल की जाने वाली या उनके द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्ति पर कम टैक्स लगेगा। ये सब चीजें शहरी विकास योजना के अंतर्गत आएंगी। ऊर्जा परिवर्तन के लिए भी अंतरिम बजट में मैंने व्यवस्था की थी। उसमें और ज्यादा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की बात थी और इसमें वहनीयता, सुलभता को प्राथमिकता दी गई थी। हम सही ऊर्जा प्रणाली के लिए हम कई बातों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी की घोषणा अंतरिम बजट में की गई थी और अंतरिम बजट में आप समझ सकते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की व्यवस्था की गई थी, जिसमें घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाने की व्यवस्था थी और इसके साथ साथ 1 करोड़ जो है घरों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दी जाएगी और इस स्कीम को, इस योजना को शानदार रिस्पांस मिला है। इसके लिए लाखों रजिस्ट्रेशन जो कराए गए हैं, 14 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। पंप स्टोरेज नीति, ये पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। बिजली के भंडारण के लिए और इन सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए इन सब व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है और ऊर्जा को सम्मिश्रित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये विकसित भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सबसे पहली बात यह है कि भारत स्मॉल रिएक्टर काम कर रही है, जिससे कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास किया जाए और उसके साथ जो नए जो परियोजना है उनके अनुसंधान का काम कर रहे हैं। R&D फंडिंग जो अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी वो उपलब्ध कराया जाएगा इस क्षेत्र के लिए भी। और उसके साथ अग्रिम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल संयंत्र के लिए जो है घरेलू प्रौद्योगिकी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए जिसमें बहुत अच्छी दक्षता होगी, उसे पूरा कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम है ये BHEL के साथ। इसमें जो है 100 मेगावाट वाणिज्यिक संयंत्र खुले जाएंगे जिसमें AU टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार जो है अपेक्षित समर्थन देगी और इसके साथ जो है घरेलू क्षमता दी जाएगी और अन्य इन प्लांट्स के लिए जो है बहुत सारे सुविधाएं होंगी अर्थव्यवस्था में और है एक रोड मैप बनाया जाएगा और ये जो है एनर्जी एफिशिएंसी और इसमें जो है इनके परिवर्तन के लिए जो है काम की अर्बन मार्केट मोड में इसमें काम लिया जाएगा और हमारे पारंपरिक छोटे के समर्थन के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेड और ऑडिट किया गया है छोटे उद्योगों के लिए, जहां 60 क्लस्टर होंगे जिसमें तांबा और सेरेमिक होगा और इसके साथ जो है इनको जो है स्वच्छ
जाएगी और The scheme will be replicated in से another उपाय किए 100 जाएंगे और clusters in the 100 क्लस्टर्स में आने वाले दिनों में इसे जो है विकास किया जाएगा। इसके साथ प्रायोरिटी 7 हम अब बात करते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि केंद्र सरकार का जो निवेश होगा, केंद्र सरकार जो है इसमें सालों साल जो है निवेश करती आई है, जिससे कि अवसंरचना में विकास हुए और इसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है अर्थव्यवस्था में। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम वित्तीय समर्थन देते रहें हमारे अवसंरचनाओं या बुनियादी सुविधाओं के लिए, और इसके साथ अन्य जो हमारी प्राथमिकता है और जो वित्तीय समेकन है उस पर भी हम काम करें। 11,11,111 करोड़ रुपए का मैंने आवंटन किया है इसके लिए, और ये जो है 3.4% हमारे सकल घरेलू उत्पाद का होगा। और हम जो है राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस तरह के बुनियादी ढांचों को समर्थन करें और प्राथमिकता के आधार पर इसे किया जाए। 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए इसके लिए और ऋण का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ जो है राज्यों के समर्थन की हमें जरूरत है। हम अगर निजी निवेश की बात करें अवसंरचना के क्षेत्र में, और जो निजी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको सशक्त नीतियां उनके लिए बनाई जाएंगी, और इसके साथ जो है इसको हम और विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 का PMGSY का उसका शुभारंभ किया जाएगा, जिससे कि जो है 25,000 हमारे जो ग्रामीण बसावट हैं उनको जो है सुविधा प्रदान किया जाए और उनकी जो जनसंख्या की वृद्धि है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा इसमें। और हम सिंचाई और जो है बाढ़ को से दूर रखने की बात करें तो बिहार जैसे आपको पता है कि वहां पर बहुत अधिक जो है बाढ़ के प्रकोप में रहता है, और हम जो है नेपाल की तरफ से जो हमारे बाढ़ नियंत्रण का काम है उस पर हमें अभी काम करना है। हमारे सिंचाई की परियोजनाएं हैं वो वित्तीय समर्थन देगी ऐसे परियोजनाओं को, जो 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें दिया जाएगा, जैसे कि हमारे कोसी लीची लिंक और 20 अन्य जो है चलायमान जो योजना है जिसमें है बराजर और हमारे जो नदी हैं उनके प्रदूषण को दूर करने के लिए। इसके साथ जो है निरीक्षण किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को इसमें लिया जाएगा और इसको विकसित किया जाएगा। और इसके साथ जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रकोप से आसाम में बहुत अधिक बाढ़ आती है और हम उनकी सहायता करेंगे और फ्लड या बाढ़ के प्रबंधन के लिए और अधिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपको मालूम है वहां पर बहुत अधिक नुकसान हुआ है बाढ़ों से। हमारी सरकार जो है इस राज्य को पुनर्निर्माण के काम के लिए, पुनर्वास के लिए धनराशि देगी, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, अपनी स्थिति को और अच्छा मजबूत कर सकें। उत्तराखंड ने भी जो है बादल फटने से और भूस्खलन से उनको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। सरकार उनको मदद करेगी। और सिक्किम में बहुत अधिक बाढ़ आई है और भूस्खलन के भी वो शिकार हुए हैं और हमारी सरकार उनको सहायता देगी, इस राज्य को, सिक्किम राज्य को सहायता देगी। अब पर्यटन की बात करें तो पर्यटन जो है वो हमेशा
हमारे जो सभ्यता है उसका एक अहम भाग रहा है। और भारत को का हमने पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देना है और पर्यटन के स्थलों को विकसित करना है, रोजगार को सृजित करना है और साथ में आर्थिक अवसर भी देना है अन्य क्षेत्रों को। और ये जो उपाय हैं जिनको रेखांकित किया गया है अंतरिम बजट में, मेरा ये प्रस्ताव है कि कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। विष्णुगत टेम्पल गया और बोध गया में महाकाली मंदिर जो बिहार में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और इसमें इनके विकास के लिए और इस कॉरिडोर के विकास के लिए और महानदी कॉरिडोर के विकास के लिए जो है समर्थन मॉडल दिया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, और उनको जो है विश्व स्तर के पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। राजगीर की अगर हम बात करें तो राजगीर में का जो है बहुत अधिक धार्मिक महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए, बौद्ध के लिए और जैन और फिर जैन जो परिसर है उसमें ऐसे मंदिर हैं जैसे कि सप्तऋषि है, 7 हॉट स्प्रिंग और ये बहुत ही पवित्र है और इनका जो है व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर को इसमें ये शामिल है, राजगीर का भी विकास किया जाएगा। हमारी सरकार जो है आनंदा के विकास को समर्थन करेगी, इसको पर्यटक स्थल बनाया जाएगा और इसके साथ जो है उड़ीसा और क्रैप स्पेशल वाइल्ड लाइफ जो सैंक्चुरी है और जो इनकी जो बीचेस हैं ये बहुत बड़े पर्यटक स्थल है। हमारी सरकार इनको विकसित करेगी, सहायता देगी उनके विकास, उड़ीसा के विकास के लिए। और अगर हम नए काम करेंगे और विकास के लिए हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का परिचालन करेंगे जो आधारित विकास है उसका काम शुरू करेंगे और हम जो है निजी क्षेत्र को भी शामिल करेंगे और इसमें अभिनव पहल किया जाएगा और इसकी घोषणा हमने अंतरिम बजट में किया है। और सुरक्षित इकोनॉमी, हम बार बार इस बात पर कहते हैं कि अंतरिक्ष की जो हमारी क्षमता है उसको हम 10 गुना ज्यादा करेंगे। आने वाले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन इसका दिया गया है। प्रायोरिटी 9 जिसमें एक जनरेशन रिफॉर्म है। हमारी जो आर्थिक सुधार का जो ढांचा है उसमें हम एक ढांचा बनाएंगे जिससे कि जो है हमारे आर्थिक विकास पर हम और अधिक ध्यान देंगे और आने वाली पीढ़ी के जो सुधार हैं उसको किया जाएगा और हमारे विकास को और उन्नत किया जाएगा। हमारी सरकार जो है जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने का काम करेगी, साथ में जो है और मार्केट के क्षेत्र को और ज्यादा दक्ष बनाएंगी और उत्पाद को का संवर्धन करेगी और कैपिटल और उद्योग के क्षेत्र और प्रौद्योगिकी जो है सशक्त बनाएगी इन सब चीजों को और इसके साथ जो है समानता बनेगी। और ये जो सुधार है वो उसमें राज्य और हमारे केंद्र को एक साथ मिलकर काम करना है और ये प्रतिस्पर्धा के लिए हमें जो है जल्दी इन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए हमें जो है इस पर ध्यान देना होगा और राज्य के साथ काम करना है और इस तरह के सुधार हमें करना है जिससे कि हम इसमें सफल हो सकें। वो जो भूमि संबंधित सुधार है हमारे शहरी क्षेत्र में उसमें जो है भूमि प्रशासन होगा और उसमें
योजना की बात आएगी और उसके साथ हमारे जो बायलॉज बनाया जाएगा, अर्बन प्लानिंग किया जाएगा और इनको प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि आने वाले सालों में इसे पूरा किया जाए और इसके लिए वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। और जो हमारे ग्रामीण कार्यवाही है उसमें आएगा कि हमें जो है भूमि की पहचान करने का काम होगा और जो है इसके साथ जो है डिजिटलाइजेशन करना होगा, इनका मानचित्रण करना होगा, सर्वेक्षण का काम करना होगा और इसके साथ जो स्वामित्व का काम करना होगा और इसके साथ जो है कि क्या किसानों का पंजीकरण की जरूरत होगी। इससे जो है जो ऋण का प्रवाह है वो और सुगम बन सकेगा और हमारे जो शहरी कार्यवाही है, जो लैंड रिकॉर्ड होंगे हमारे शहरी क्षेत्र में उसे उसका डिजिटलाइजेशन किया होगा मैपिंग के द्वारा और इसके साथ जो है इनका अपडेटिंग या उन्नयन किया जाएगा और उसके इससे जो है हमारे वित्तीय स्थिति और बेहतर बनेगी हमारे जो शहरी स्थानीय क्षेत्रों का और इसके साथ हमारे श्रम है उनको सेवाएं दी जाएंगी। हमारी सरकार जो है बहुत सारी सेवाएं जो है श्रमिकों को देंगी, उनको कुशलता के रास्ते उनको और कुशल बनाएगी, उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के साथ दूसरे पोर्टल को जोड़कर एक वन स्टॉप सोल्यूशन या एक जगह समाधान मिलेगा क्योंकि जो श्रम बाजार है वो तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है और इसके साथ जो है एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसमें जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको हम सुविधा प्रदान कर सकें और इनको और अधिक कुशल बनाने का हम करेंगे। समाधान पोर्टल, श्रम और समाधान पोर्टल, ये इसको जो है दोबारा नए सिरे से इसको तैयार किया जाएगा और इसमें एजेंसी और जो व्यापार है उनको जोड़ा जाएगा, जो उद्योग के सुधार है वो किया जाएगा, रणनीतिक सुधार किया जाएगा और वित्तीय सुधार वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी एक दृष्टि होनी चाहिए और रणनीतिक दस्तावेज होना चाहिए जिससे कि हम क्षमता संवर्धन कर सकें और कुशलता को बना सकें। इससे आने वाले 5 साल की कार्य सूची बनेगी और सरकार को मार्गदर्शन मिलेगा, विनियामक को मिलेगा और हमारे जो बाजार में सहभागी हैं उनको सुविधा मिलेगी। जलवायु वित्त पोषण के लिए हम जो है हमारे जो कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन से सरकार हमारे जो जलवायु संबंधी जो वचनबद्धता है उसको हम पूरा कर सकेंगे। अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें हमें जो है कानूनी प्रावधान करना होगा जिससे कि एक बहुत मजबूत मोड बन सके और जो है हमारे हवाई जहाज और हमारी जो जहाज रानी है उनको जो है एक वेरिएबल कंपनी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आना लगा होगा और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें और नियम विनियम जो FDI के हैं उसको और अधिक सरल किया जाएगा और इसके साथ जो है इनका हम प्रायोरिटाइजेशन या प्राथमिकता की बात करेंगे। हमारी जो भारतीय मुद्रा है वो बाहर भी चले इसका हम काम करेंगे और इस for minors will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted अलावा परिपक्वता की अवधि के बाद जो योजनाएं होंगी उसको NPS अकाउंट में डाल दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाएगा, हमने सफलतापूर्वक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है जिससे हम असमानता को समाप्त कर सकें। पिछले 10 सालों में हमने ऐसा किया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और सार्वजनिक क्षेत्र की भी बढ़ी है। आमतौर पे आम आदमी के लिए जो बाजार के संसाधन हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उनका उपयोग किया गया है।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं जिससे बिजनेस करने में आसानी हो। जन विश्वास बिल 2.0 की शुरुआत की गई है और राज्यों को और ज्यादा प्रोत्साहन इस सिलसिले में दिए जाएंगे। जो कार्य योजनाएं बनेंगी वो डिजिटलीकरण के लिए बनेंगी और डेटा के शासन तंत्र को, उसके तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आंकड़ों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के डेटा को इसमें शामिल किया गया है और डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है और टेक्नोलॉजी के नए नए टूल्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम में बदलाव लाने के प्रयास किए गए हैं ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। मुझे यह बताते हुए खुशी है